Hi, lovely students. Welcome back to Fatafat English with Abhishek sir. Hope you are good. I'm also good, guys. Come join your live class soon. Basically, my name is Abhishek Agrawal and I'm an English language trainer, training the people to the tune of spoken English and developing their personalities through spoken English classes. This is a Facebook live class and the students come here and join the classes of spoken English every day and they practice in the chat box. Basically, in this class, we discuss a lot of English vocabulary and some grammar structures, and this class is full of real life examples. I have a YouTube channel in the name of Fatafat English with Abhishek sir, and people are watching YouTube videos and practicing there like anything. बहुत सारा मजा आ रहा है वहाँ पर. They are of course practicing and they are learning speaking. They are learning spoken English by themselves, and it has become quite a game for them to practice every day. They watch videos even without my saying, without my without any compulsion. They watch videos and they practice there. This is quite interesting. In this class today, I'm going to tell you, or I'm going to teach you, or I'm going to explain three important structures of passive voice. So stay tuned till the end of this class and keep learning with Abhishek sir. I have an Instagram handle in the same name, Fatafat English with Abhishek sir, and I too have a Facebook page in the same name, Fatafat English with Abhishek sir. You can follow me at every place and you can start learning wherever you want to learn. कहाँ भी, कहीं पर भी, जहाँ पर भी, you can learn everything on the go. आप सब कुछ चलते चलते सीख सकते हैं. I've been in a great mood. A very good evening, everyone. Let more people join us soon. More people must be coming up soon. I hope you had a nice weekend. आप लोगों का वीकेंड भी बढ़िया रहा होगा. What did you do? My health is good. I'm in the best of my health. I've been in a great mood, and this is phenomenal. I told you, right? This is phenomenal. The weather has been bad these days. आजकल मौसम बहुत गर्म हो गया. It's been hellish. चलिए लर्न करना शुरू कीजिए. It's been hellish. It has been. जब कहे ना बहुत गर्मी है यार, कई दिनों से बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है. इट्स बीन हेलिश. इट हैज बीन. यदि हमें कहना है कि अभी गर्मी हो रही है तो हम कहेंगे इट इज हेलिश. और यदि आपको लगता है कि कई दिनों से गर्मी हो रही है, इट्स बीन हेलिश. इट्स बीन हेलिश हॉट. हाय एवरीवन. स्टार्ट लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग इन द चैट बॉक्स. चैट बॉक्स में प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए. इट हैज बीन हेलिश. इट्स बीन हेलिश. ये जब हम फ्लो में बोलेंगे तो हम कहेंगे इट्स बीन हेलिश दीज डेज. आजकल गर्मी बहुत हो रही है. इट्स बॉइलिंग आउटसाइड. बहुत ही ज्यादा गर्मी. इट्स ब्लिस्टरिंग हॉट. आप चाहे जैसे मर्जी कह सकते हैं. इट्स बीन ब्लिस्टरिंग हॉट. इट हैज बीन हेलिश हॉट. बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है. इट हैज बीन. इट और हैज को हमने मिला दिया है और तब हमने कहा है इट हैज बीन. So please tell difference between let's and let's. Right. I'll tell you. Don't worry. Let me explain this. इसको explain कर देता हूं, फिर मैं आगे आपको बता दूंगा let's और let's में क्या अंतर है. बेसिकली मुझे लगता है आपने जो सेकेंड वाला let's लिखा है वो तो होता ही नहीं. जो फर्स्ट वाला लेट्स है वही होता है. बस लेट्स एक ही. और ये कुछ नहीं होता. सेकंड वाला लेट्स कुछ नहीं होता. लेट अस को मिलाकर के शॉर्ट में हम लेट्स लिख देते हैं. लेट्स डू इट. सेकंड वाला लेट्स कुछ होता ही नहीं. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो इट्स बीन हेलिश हॉट. इट्स बीन सल्ट्री हॉट. इट्स बीन स्वेल्टरिंग हॉट. इट हैज बीन स्वेल्टरिंग हॉट. इट हैज बीन हॉट. ये तो एक कॉमन सेंटेंस हो गया. इट्स बीन हॉट. भाई अभी गर्मी है बाहर. इट्स हॉट.
इट्स हॉट आउटसाइड, लेकिन कई दिनों से लगातार गर्मी है. इट्स बीन हेलिश हॉट, इट्स बीन स्वेल्टरिंग हॉट, इट्स बीन हेलिश हॉट, इट्स बीन सल्ट्री. कैसे भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे. एंड हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो so that more people get notification and they join us. However, the students become careless sometimes. Alright, it's been sweltering hot. Alright, वो छुट्टी के मूड में आ जाते हैं, तो बस छुट्टी के मूड में आ जाते हैं. Right, so it's been sweltering hot. It's been sultry hot. कैसे भी आप कह सकते हैं. वैसे तो जनरली हम हेलिश कहते हैं, यार बहुत ही जहन्नुम वाली गर्मी हो रही है. इट्स हेलिश आउटसाइड, इट्स हेलिश हॉट आउटसाइड. राइट, शुड आई मूव ऑन? क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए? इफ यू हैव लर्न्ड इट, आई वुड लाइक टू आस्क यू, हाउ वाज योर वीकेंड? डिड यू डू समथिंग स्पेशल? Did you watch a movie or did you go out somewhere? Or did you prepare any special recipe? However, you would not feel like preparing anything. ऐसे मौसम में, ऐसी गर्मी में किचन में कौन काम करना पसंद करेगा? Nobody would like to move on. Nobody would like to go to kitchen or nobody would. Okay, I'm already moving on. Hit the like button and share this video. If you have already shared, that's all right. Well, let's talk about passive voice. We had been talking about passive voice. अब देखिए मैंने क्या बोला. We had been talking about passive voice because in the last few classes we were talking about. Okay, you have to go for shopping. Great. Right. तो basically passive voice हमने real life में use करना सीख लिया है. कई सारे structures हमने सीख लिए हैं. There is a function in my family. Okay, good. You can of course go after the class. Well, passive voice हमने real life examples के साथ करना सीख लिया है. We had been talking about passive voice and you have already learned some structures. But basically एक structure है कि भाई ये किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता. कौन करेगा ये important नहीं है. बात हो रही है, स्ट्रक्चर को सीख लेते हैं पहले. It can be done. Type it in the chat box. It can be done. It can be done. It can be done. Right. It can be done. अब जैसे कई बार हम लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई ये किया जा सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता. जैसे जनरली यदि आपके घर में कोई फंक्शन है और बहुत सारा खाना बच गया है, तो हम लोग पूछते हैं कि भाई क्या किया जाना चाहिए, ये खाना बच गया है इतना सारा. तो यहां पर एक स्ट्रक्चर आएगा, व्हाट शुड बी डन. इसे भी टाइप कर लीजिए, व्हाट शुड बी डन. मतलब एक्शन का तो हमेशा थर्ड फॉर्म ही रहेगा. व्हाट कैन बी डन, इट कैन बी डन, व्हाट शुड बी डन, इट कैन नॉट बी डन, इट शुड बी डन. अभी हम देखेंगे कि कैसे हम इसको सेंटेंसेस में यूज कर लेते हैं अपनी डेली लाइफ में. राइट, व्हाट शुड बी डन. अब जैसे बात हो रही है कि भाई बहुत सारा खाना बच गया है, तो क्या किया जा सकता है या क्या किया जाना चाहिए. व्हाट कैन बी डन और व्हाट शुड बी डन. अब मैं आपसे पूछूंगा कि भाई खाना बच गया है, लॉट ऑफ फूड इज लेफ्ट, व्हाट कैन बी डन. क्या किया जा सकता है. तो फिर आप बताएंगे सर ये खाना पड़ोसियों में बांटा जा सकता है, ये खाना उन लोगों में बांटा जा सकता है जो लोग शादी में नहीं आए थे, या जिन लोगों को हमने इनवाइट नहीं किया था या हमने इनवाइट नहीं किया था. लॉट ऑफ फूड इज लेफ्ट. तो क्या किया जा सकता है, व्हाट कैन बी डन. इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल हु वर नॉट इनवाइटेड, जिनको इनवाइट नहीं किया गया.
क्या लगता है? It can be distributed among the people who were not invited. वो लोग जो शादी में बुलाए ही नहीं गए या जो फंक्शन में बुलाए ही नहीं गए. फूड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द हैंडीकैप्ड पीपल, राइट. फूड बांटा जा सकता है, हाँ, इट कैन बी डन. लेकिन अब सवाल ये है कि हैंडीकैप्ड लोगों को कहां से ढूंढोगे आप? सवाल ये भी तो है कि हैंडीकैप्ड लोग कहां से आएंगे? Come on, tell me. It cannot be. It can be distributed among the people who were not invited. उन लोगों में बांट दिया जाए जिनको शादी में बुलाया नहीं, जिनको फंक्शन में बुलाया नहीं. बुरा नहीं मानेंगे वो, आपने फंक्शन में तो बुलाया नहीं. They will accept it कि ठीक है भाई, हमें दे जाओ. क्या लगता है? What do you say? Come on, guys, tell me. They will accept? They will not. They will not. The people who are not invited, they will not accept the food. So, the food cannot be distributed among the people who were not invited. चलिए टाइप कीजिए. ये काफी लंबा सेंटेंस हो गया, लेकिन आप टाइप कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये बोलना पड़ेगा यार. खाना उन लोगों में नहीं बांटा जा सकता जिनको इनवाइट ही नहीं किया था हमने. द फूड कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड among the people who were not invited. The food cannot be distributed among the people who were not invited. Food cannot be distributed among the people who were not invited. So food should be thrown. खाना फेंक दिया जाना चाहिए. Good evening, gentlemen. You're very late. All right. Tell me, what should be done? The food cannot be distributed among the people who were not invited. The people who were not invited, they will not accept the food, right? Right. The food cannot be distributed among the people who were not invited. So food should be thrown. खाना फेंक दिया जाना चाहिए. फूड शुड बी थ्रोन. फेंक दिया जाना चाहिए क्या? क्या लगता है? फूड शुड बी थ्रोन. मेरे हिसाब से तो फूड कैन नॉट बी थ्रोन. फूड कैन नॉट बी थ्रोन और फूड शुड नॉट बी थ्रोन. खाना फेंका ही नहीं जाना चाहिए. खाना फेंका जा भी नहीं सकता और ये फेंका जाना भी नहीं चाहिए. खाना फेंका नहीं जाना चाहिए. फूड कैन नॉट बी थ्रोन. No issue. No issue. Here also the current had gone. Food should be utilized. नहीं तो how to utilize the food? खाना कैसे बताइए? How to utilize the food? भाई ऑफ कोर्स इट कैन बी ईटन. खाना खाया ही तो जा सकता है. सिर्फ खाना सिर्फ खाया जा सकता है. तो फूड कैन नॉट बी थ्रोन. फेंका नहीं जा सकता. और मेरे हिसाब से फूड शुड नॉट बी थ्रोन. खाना फेंका भी नहीं जाना चाहिए. खाना फेंका भी नहीं जाना चाहिए. फूड शुड बी यूटिलाइज्ड. बट द प्रॉब्लम इज हाउ टू यूटिलाइज. यूटिलाइज कैसे करें? व्हाट कैन बी डन? व्हाट कैन बी डन गाइस? व्हाट कैन बी डन? फूड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द बेगर्स. कुछ लोग ऐसा भी कहेंगे कि भिखारियों में बांट दिया जाना चाहिए. भिखारी कहां से लाओगे? हाउ विल यू गेट सो मेनी बेगर्स? Come on, where will you get so many beggars? A lot of food is left. Food cannot be thrown. Food should not be thrown, right? You're right. Food cannot be thrown. So what to do with the food? क्या किया जाए खाने से?
खाने के साथ क्या किया जाए? लॉट ऑफ फूड इज लेफ्ट। भाई आपके यहाँ कोई फंक्शन है, खाना बच गया है, अब आप क्या करेंगे? हाउ विल यू यूटिलाइज द फूड? अब कुछ लोग कहेंगे सर खाना फ्रिज में रखा जा सकता है। कुछ खाना तो रखा जा सकता है और रखते भी हैं लोग। यस, फूड इज केप्ट। फूड इज केप्ट इन द फ्रिज। A lot of food will be kept in the fridge. Lot of food should be given in orphanage. ये भी बात सही है, अनाथालय में दे दिया जाए। लेकिन अब रात को 12 बजे कौन जाएगा? रात को 10 बजे कौन जाएगा? 11 बजे कौन जाएगा? 12 बजे कौन जाएगा? It's okay, Mohini. It's okay. Now pay attention to another structure of passive voice. So what can be done or what should be done? ये खाने का हमें क्या करना है बताइए ना। You have to tell. इसमें हमारी प्रैक्टिस भी हो रही है और हम इसे सीख भी रहे हैं। Right. तो what can be done और what should be done? क्या किया जाना चाहिए? अब सोचिए, जैसे चलो अभी पहले इसको ही डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी देर। आई विल गिव द फूड, लेफ्ट फूड टू द गौशाला। दैट्स राइट। फूड शुड बी गिवन टू गौशाला। फूड शुड बी गिवन टू द एनिमल्स। लेकिन एनिमल्स भी कहां से लाओगे? यू विल हैव टू गो टू सब्जी मंडी। सम गुड फूड शुड बी केप्ट इन द फ्रिज। लो, यहाँ पे लेडीज आर बीइंग चूजी। यहाँ पे लेडीज चूजी हो रही है कि भाई पनीर की सब्जी है तो रख दो, आलू की सब्जी है तो फेंक दो, आलू की सब्जी है तो बांट दो। वाह, क्या बात है। मटर पनीर है तो रख लो, रसगुल्ले हैं तो रख लो, बाकी मिक्स वेज है तो उसको बांट दो। क्या बात है। ऐसा ही करते हैं लोग, करते भी हैं यार, ऐसा ही करते हैं लोग। इट इज डन, इट इज डन। ऐसा ही करते भी हैं। मैं भी ऐसा ही करूंगा, शायद मेरे फैमिली मेंबर्स भी शायद ऐसा ही करेंगे। यू नो, पनीर विल बी केप्ट इन द फ्रिज, रसगुल्लास विल बी केप्ट इन द फ्रिज, बट मिक्स वेज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। मिक्स वेज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मिक्स वेज विल बी डोनेटेड। Left food should be given to the maid servants. Right? That's right. This is done. ये होता भी है. Food is given to the maid servants. Leftovers are given. Food should be distributed among the neighbors. ये भी एक सजेशन है, अच्छा सजेशन है. Neighbors normally accept it. पड़ोसी अक्सर ले लेते हैं. पड़ोसी अक्सर यदि भले हों तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं. नहीं तो कुछ बहुत ही अलग ही टाइप के होते हैं. Some people are quite nosy. बड़े मतलब अलग ही मिजाज के होते हैं. They will not accept the food. Your network connection is really poor. आपका नेटवर्क कनेक्शन वास्तव में पुअर है. कोई बात नहीं. Now Yogi ji will distribute some network connection also. He has already distributed some funds. He will give you proper network also. चलो, अब what can be done और what should be done. अब सोचिए, बच्चा है, आपका बच्चा है. अब एक दूसरी सिचुएशन को ले लेते हैं. दूसरी सिचुएशन ले लेते हैं. बच्चा है और वो फेल होकर आ गया अपने एग्जाम्स में. तो व्हाट कैन बी डन और व्हाट शुड बी डन. अब क्या किया जाए. फेल होकर के आ गया है बच्चा पेपर में. Neighbors can accept. Yeah, neighbors, my neighbors are very good. They will accept. But sometimes you will hesitate to give them. आपको hesitation होगी कि मैं उन्हें दे दूं कि नहीं दे दूं. बोला तो नहीं मान जाएंगे. Nobody will mind it. Simply they will say no. Maybe they will accept. आप यदि उनसे कहें बहुत सारा खाना बच गया है, हमने अपने लिए भी रख लिया है और हम चाहते हैं कि ये खाना वेस्ट ना जाए, तो यदि आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये बड़ी मेहरबानी रहेगी. खराब हो जाएगा ये खाना. हमने बहुत सारा फ्रिज में रख लिया, आप भी फ्रिज में रख लें और जितना आपको चाहिए उतना आप ले लें. आइए कम. यदि आप पोलाइटली उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो जरूर ले लेंगे. आप ये कहेंगे हमारी शादी का खाना बच गया, आपको चाहिए क्या,
तो ये गलत हो जाएगा। किसी को देने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज पीपल विल नॉट एक्सेप्ट। इट शुड बी पनिश्ड हिम, ये तो सेंटेंस गलत हो गया बेटा। दे विल एक्सेप्ट इफ यू हैव गुड टर्म्स, गुड रिलेशनशिप विद देम। Left food can be eaten again, but in winter. But a lot of food is left, gentlemen. बहुत सारा खाना बचा है। 50 लोगों का खाना बचा है। घर में 2, 3, 4, 5 लोग होते हैं, तो some food can be eaten, but only in winters. यदि आप पड़ोसियों के यहाँ जाएंगे, अरे भाभी जी हमारे यहाँ बहुत सारा खाना बच गया है। अब एक तरीका है कि एक तो हम इसे वेस्ट कर दें, एक हम और आप मिलकर इसे यूटिलाइज कर लें। तो थोड़ा खाना हम भी खा लेंगे और हम चाहते हैं कि थोड़ा खाना आप लोग भी लें। बच गया, उसे फेंकने से तो कोई फायदा नहीं है, बहुत कीमत लगी हुई है उसमें। तो अब आप बताइए क्या क्या लेना पसंद करेंगे। मुझे लगता है इतने प्यार से यदि आप पूछोगे तो भाभी जी चुपचाप से चली आएंगी। अरे हाँ बताइए क्या क्या बचा हुआ है, देखते हैं हमारे पसंद का कुछ हो तो। अच्छी चीजों से शुरुआत करिएगा कि आप मिक्स वेज की सब्जी से शुरुआत करें। थोड़ा पनीर बचा हुआ है, रसगुल्ले बचे हुए हैं, और उसके साथ में ही आप मटर पनीर भी, आप मिक्स वेज भी सरका सकते हैं। लेकिन यदि आपने मिक्स वेज बची हुई है, पूड़ी बची हुई है, खराब खराब सारी चीजें उन्हें बांटने की कोशिश की, दे विल नॉट एक्सेप्ट इट। राइट। तो ये एक सिस्टम होता है कि आप कैसे देंगे, सामने वाले का ऑनर कैसे करेंगे, उसका सम्मान कैसे करेंगे। अपमान करके आप किसी को कुछ दे भी नहीं सकते, दे विल नॉट एक्सेप्ट इट। और सम्मान के साथ आप अच्छी चीज ना दें, थोड़ी कम वैल्यू वाली चीज भी दें, दे विल एक्सेप्ट इट। राइट। तो मैं बता रहा था, सेकंड सिचुएशन ले लेते हैं अब। फूड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द नेबर्स, ये तो हो गया। बात आ रही है कि बच्चा आ गया घर में फेल हो करके, फेल हो गया। What should be done or what can be done? He should be beaten, पकड़ के कूट दो। He should be beaten, he should be punished. भाई मेरे हिसाब से it should not be done or it cannot be done. The child cannot be beaten or should not be beaten. पिटना नहीं चाहिए बच्चे को। पीटोगे तो क्या होगा? पीट के तो आपने पढ़ाया ही होगा उसे। Left food can be packed for relatives who are going after the function to distribute anything. First we will have to tell the quality, then other one will accept. You are right. He should be punished. ना मेरे हिसाब से तो नहीं। What can be done? He should not be beaten. The child should not be beaten. बच्चे को पीटा नहीं जाना चाहिए। यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, what can be done? बच्चा फेल होकर आ गया, what would you do? क्या करेंगे आप ऐसे में? He should not be beaten or punished. What are you going to do? What would you do? क्या करेंगे आप? Even child should not be scolded. Right? बच्चे को डांटा भी नहीं जाना चाहिए। Child should not be beaten. अभी तो ये जाननी कह रही थी कि child should be beaten, he should be punished. अभी इन्होंने अपना स्टैंड चेंज कर लिया है, क्योंकि ये जो क्लासेस हैं ये खाली इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस नहीं है। ये धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी, आपके बिहेवियर, आपके एटीट्यूड को भी चेंज करेंगी। वो फेल होके आया, ही इज ऑलरेडी वेरी डिसअपॉइंटेड, ही मस्ट बी डिसअपॉइंटेड। द चाइल्ड शुड नॉट बी बीटन, तो ही शुड बी मर्डर्ड, ही शुड बी किल्ड। बंदूक लाओ, ही शुड बी किल्ड, मार दिया जाना चाहिए। ही शुड बी हैंग्ड, फांसी पे चढ़ा दो उसको। व्हाट शुड बी डन, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। व्हाट शुड बी डन, अब क्या किया जाए? व्हाट कैन बी डन? बताइए। ओनली पनिश्ड? ना मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। यू आर गोइंग टू सजेस्ट मी। सोचो आप फेल होके आ गए। दैट्स राइट। रवि भैया इज, आई विल सजेस्ट हिम टू स्टार्ट द बिजनेस। अरे अभी से कहाँ बिजनेस, अभी वो 7वीं क्लास में है, 5वीं क्लास में है। अभी से ही, शुरू से ही भाई, कल से तू जो है मूंगफली की दुकान लगा लियो, कल से तू चाय की दुकान खोल लियो, अखबार बांटना शुरू कर दियो, बिजनेस शुरू कर अपना।
ऐसे थोड़ी होता है, पहले ये पूछो तो सही कि वो कौन सी क्लास में है, वो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट थोड़ी है। पढ़ना भी तो जरूरी है, बिजनेस स्टार्ट कर लो। ये बात हमारी समझ में नहीं आई भाई। वी शुड बी अंडरस्टूड पोलाइटली, ना ये गलत सेंटेंस हो गया। मस्ट बी डिसअपॉइंटेड, देन वी शुड मेक हिम अंडरस्टैंड पोलाइटली। हमें उसे प्यार से समझाना चाहिए। नहीं समझे, अभी समझाना नहीं है, अभी तो वो फेल होके आया है, अभी क्या समझाने बैठ जाओगे। अभी तो आपको डिस्कवर करना है। यू हैव टू डिस्कवर द रीजन वाई ही फेल्ड। रवि भैया इज राइट, you have to discover the reason, you have to find out the reason. He should be understood politely ना, ये सेंटेंस गलत है। We should make him, यहां पे कहना चाहिए उसको प्यार से। आप ये कहना चाहती हैं कि उसको प्यार से समझाया जाना चाहिए। उसको समझना है, समझाना है, समझना है या समझाना है, ये क्या लिखा है आपने? उसको समझना है। वी हैव टू सिट पोलाइटली। अब उसको समझाना है तो वी हैव टू मेक हिम अंडरस्टैंड। वी शुड मेक हिम अंडरस्टैंड पोलाइटली। वी हैव टू फाइंड आउट द रीजन व्हाई ही फेल्ड। आपको समझना पड़ेगा कि क्या उसने याद नहीं किया, क्या उसे याद नहीं होता, क्या स्कूल में सही से पढ़ाया नहीं जा रहा, क्या ट्यूशन में सही से नहीं जा रहा वो, क्या उसने होमवर्क नहीं किया, क्या उसने याद नहीं किया। आपको पहले फिगर आउट करना पड़ेगा। यू हैव टू फिगर आउट द रीजन, बिकॉज अनलेस और अंटिल यू फिगर आउट द रीजन, जब तक कि आप रीजन का पता नहीं करेंगे, यू कैन नॉट फाइंड अ सोल्यूशन। आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। यू हैव टू फाइंड आउट द रीजन व्हाई ही फेल्ड, whether he did not study or he does not like to study, or he does not like to study, or he did not like to study, he did not complete his homework assignments, or he did not attend the classes properly, he did not listen to the lectures carefully. What is the reason? आखिर वजह क्या है? वजह क्या है? अनलेस और अनटिल यू फिगर आउट द रीजन, जब तक कि आप ये पता नहीं करेंगे कि कारण क्या है, व्हाई ही फेल्ड। सम चिल्ड्रन डू नॉट लाइक टू स्टडी, सम स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक टू स्टडी, और दे डू नॉट लिसन केयरफुली, और दे डू नॉट कंप्लीट देयर होमवर्क, और दे डू नॉट स्टडी, और दे कैन नॉट मेमोराइज। कई बार वो याद नहीं कर पाते। दे ट्राई देयर बेस्ट बट दे कैन नॉट मेमोराइज, उन्हें याद ही नहीं होता। तो फिर वाई ही शुड बी पनिश्ड? मेरे हिसाब से तो यू हैव टू फिगर आउट द रीजन एंड वर्क आउट फॉर द सोल्यूशन। जब तक आप ये पता नहीं करेंगे कि कारण क्या है, कारण क्या है, जब तक आप ये पता नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी एक्शन नहीं ले सकते। मेरे हिसाब से तो रीजन शुड बी फिगर्ड आउट, कारण का पता लगाया जाना चाहिए। पैसिव वॉइस बन गया। रीजन शुड बी नोन, रीजन शुड बी डिस्कवर्ड, रीजन शुड बी फाउंड, रीजन शुड बी फिगर्ड आउट। कारण का पता लगाया जाना चाहिए। व्हाट डू यू से? What do you say, guys? Come on, tell me fast. Do you like my ideas? Reason should be figured out. अब ये तो वैभव शर्मा जी की बस चले तो ये उसे बचपन में ही बिजनेस कराते। पढ़ाई भी जरूरी है, पढ़ना भी पड़ेगा। 5वीं फेल बढ़िया नहीं रहेगा, 10th फेल बढ़िया नहीं रहेगा, बढ़िया नहीं रहेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एजुकेटेड। उसकी फीलिंग्स को समझना है और माइंड डाइवर्ट करना है, उसके साथ एंजॉय करना है, फिर कभी राइट। क्या बात है। एक ये देवी जी हैं, ये इन्होंने अच्छी सलाह दी है, अच्छा एडवाइस किया इन्होंने, बढ़िया।
माँ है ना, आखिर बच्चों को समझेगी। हाँ, उस समय नहीं समझाना, उस समय तो उसको कंसोल करना है, सांत्वना देनी है। अरे कोई बात नहीं यार, फेल हो गया, कोई बात नहीं, देखते हैं अभी क्या क्या कारण है, पता करेंगे कारण का। मेरे हिसाब से तो ऐसा ही होना चाहिए। यू आर सपोज टू कंसोल हिम, उसको सांत्वना देनी चाहिए। सांत्वना, कंसोल, यू आर सपोज टू कंसोल हिम, सांत्वना देने को। अरे कोई बात नहीं यार, चल फेल हो गया, कोई, अरे इसमें नंबर कम आए हैं, देखते हैं क्या कारण है, ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं, कुछ ना कुछ मिलके, सब लोग मिलके ट्राई करते हैं, उसको पास कराते हैं या कुछ ना कुछ। तो मेरे हिसाब से दिस इज द राइट वे। फर्स्ट यू आर सपोज टू कंसोल, यू आर सपोज टू हैंडल द बिगेस्ट प्रॉब्लम, कि वो किस मनस्थिति से गुजर रहा होगा। यू आर सपोज टू, वी हैव सपोज टू नहीं होता मैम, वी आर सपोज टू। मे बी अंजलि मैम वॉचेस संदीप महेश्वरीज वीडियोस। नो 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 नो, ये तो अपना एक, अपनी एक सेंस होता है, अपना एक कॉमन सेंस है। यदि आप पिता बन गए, माता बन गए, तो फिर आपको खुद ही आ जाएगा। आपको संदीप महेश्वरी की वीडियो देखने से नहीं आएगा, जरूरी नहीं कि वो सब कुछ डिस्कस करता हो। वो अच्छे बोलते हैं, अच्छा डिस्कस करते हैं, लेकिन यदि आप खुद से सोचेंगे कि इस पर क्या बीत रही होगी, मुझे कैसे हैंडल करना है, तो फिर आपको आ जाएगा, आ जाएगा। यू डोंट नीड अ गाइड और यू डोंट नीड अ मेंटोर टू हैंडल योर ओन किड्स। अपने बच्चों को, अपने परिवार को हमें कैसे हैंडल करना है, ये आपको धीरे धीरे आपको आ जाएगा, और नहीं। अदरवाइज यू आर वॉचिंग अभिषेक सर वीडियोस, राइट? I usually watch him, so you're very influenced. We are supposed to console की स्पेलिंग गलत है भाई। मोहिनी मैम को स्पेलिंग्स में अभी भी प्रॉब्लम होती है, और मुझे लगता है ये होती ही रहेगी। राइट, चलो कोई बात नहीं। We are supposed to console him. We are supposed to figure out. The reason should be figured out. The reason should be known. The reason should be discovered. The reason should be found. We should encourage him. हमें encourage करना ही चाहिए. We are supposed to encourage क्या, किस लिए, कि फेल हो गए, कोई बात नहीं है भाई। encourage सही वर्ड नहीं है, encourage सही वर्ड नहीं है। हमें कंसोल ही करना है, एनकरेज नहीं करना है। एनकरेज तो हम जब किसी को वो कर नहीं पा रहा हो, तब हम उसे एनकरेज करना कहेंगे। लेकिन वी आर सपोज, अभी तो वो फेल होकर आ गया ना, उसको खराब लग रहा होगा, उसके दोस्त पास हो गए हैं और वो फेल हो गया है। आई एम ट्राइंग नॉट टू डू मिस्टेक्स, ओके, नो इश्यू, बट माई जॉब इज टू करेक्ट यू। द रीजन शुड बी डिस्कवर्ड एंड he should be consoled. ये सेंटेंस होना चाहिए। We are supposed to console him. Right. He cannot be punished. He should not be punished, or he cannot be beaten. He cannot be encouraged. He should be encouraged to study and to do better next time. अगली बार वो बेहतर करे, इसके लिए encourage किया जाना चाहिए। But unless or until you figure out the reason, he is not going to improve. वो इंप्रूव नहीं करने वाला। ही इज नॉट गोइंग टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम। यू हैव टू फिगर आउट द रीजन। आपको कारण पता चलाना पड़ेगा। क्या इसे याद नहीं होता, इसकी मेमोरी वीक है, क्या इसका अटेंशन ठीक नहीं है, क्या इसके कान ठीक नहीं है, क्या ये लिखता नहीं है। यू हैव टू फिगर आउट द रीजन व्हाई ही इज नॉट। अरे ये दीक्षा मैम बड़ी जल्दी आ गई, बड़ी जल्दी आ गई। इन द ट्यूशंस normally teachers beat the children. Now it's going to be over, guys. It's more than 7. We're going to continue this class tomorrow again. Right? So till then, take care of yourself. Bye.